In this video, we are going to solve Pure Mathematics 1, Paper 1, October-November 2019. Question 1 is, find the term independent of x in the expansion of 2x plus 1 over 4x square whole raised to the power 6. This question is from binomial and इसमें हमें जो term है independent of x को find करना है. Term independent of x का मतलब ये है x raised to the power 0. Keep in mind. Okay. नेक्स्ट जो हमारे पास सिंगल टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए रेज टू द पावर एन माइनस आर बी रेज टू द पावर आर. Here a is 2x, b is 1 over 4x square, n is 6 and r is undetermined yet. We have to figure it out. So value substitute कर दें 6cr 2x whole raised to the power 6 minus r 1 over 4x square whole raised to the power r. ओके नेक्स्ट अब हमारा टारगेट ये है कि हमने सिंप्लीफिकेशन करके x की जो पावर्स हैं वो कलेक्ट करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो अप्लाई होंगे. तो 6cr नाउ 2 raised to the power 6 minus r and x raised to the power 6 minus r times 1 over 4 raised to the power r and x raised to the power 2r. Okay, now x raised to the power 6 minus r and x raised to the power 2r. इन दोनों को जब हम combine कर लेंगे, so this becomes x raised to the power 6 minus r minus 2r. And finally, x raised to the power 6 minus 3r. So अब next हमने क्या करना है, जब इस point पे हम पहुंच जाएंगे कि x की सारी जो powers हैं वो हमने सेपरेट कर ली है, वो हमने एक जगह पे कलेक्ट कर ली है, देन आपने क्या करना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब था x रेज टू द पावर 0. दिस मींस हमने अब इसको इक्वेट करना है x रेज टू द पावर 0 के साथ. नाउ पुट x रेज टू द पावर 6 minus 3r, दिस इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 0. So 6 minus 3r is equals to 0, 3r is equals to 6, and from here r is equals to 2. Now I put r is equal to 2 in this expression. So this becomes 6 c2 2 raised to the power 6 minus 2 x raised to the power 6 minus 3 into 2 over 4 square, and the answer is 15. And you can say that there is no x in this answer, so this means we have found the correct correct value. Question 2. An increasing function f is defined for x greater than n, where n is an integer. It is given that f dash of x is equals to x squared minus 6x plus 8. Find the least possible value of n. Since f is given as an increasing function, so we are going to use the condition f dash of x is greater than 0 for an increasing function. So put f dash of x greater than 0, f dash of x is already given, so x squared minus 6x plus 8 is greater than 0. And now here we have to solve the quadratic inequality. So इसको solve करने के लिए हमें middle term breaking करनी होगी in such a way कि हमें two factors ऐसे लेनी है, अगर हम उनको multiply करें तो 8x square बने, add या subtract करें तो minus 6x बने. So x square minus 4x minus 2x plus 8 is greater than 0. First two terms में से x common ले लें into x minus 4, and from here minus 2 into x minus 4 is greater than 0. And now we are left with x minus 4 and x minus 2 is greater than 0. अब separately इन दोनों को equal to 0 put करें so that we can get the values of x, and we are going to use that values for graph plotting. So x minus 4 is equals to 0 gives x is equals to 4, and x minus 2 is equal to 0 gives x is equals to 2. उसके बाद आपने xy axis बनाना है, and then put these values on x axis 2 and 4. Next step is to decide the shape of the curve. Since this inequality is quadratic, so the graph is either going to be like this, that is happy face, or like this, that is sad face. Now, depending upon the coefficient of x square, we decide the shape of the graph. If the coefficient of x square is positive, then the graph is smiley face. If the coefficient of x square is negative, then graph is a sad face. In this case, we have coefficient of x square is positive 1. So this means the graph of this is going to be a smiley face passing through 2 and 4. So graph आपने draw कर देना है, ठीक है. Next step is to shade the graph. अगर आपके पास greater than 0 के साथ inequality आ रही है, then it's mean the area above the x-axis will be shaded. If हमारे पास less than 0 के साथ inequality होती, then area below the x-axis will be shaded. So here in this case we have greater than 0.
सो इसलिए हमने एरिया अबव द एक्स एक्सिस जो है वो शेड कर दिया है. नाउ राइट डाउन द इनइक्वालिटीज फॉर बोथ द शेडेड रीजन्स. फॉर दिस लेफ्ट पार्ट we have x is less than 2, and for the right part we have x is greater than 4. Okay. नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारा जो लीस्ट पॉसिबल नंबर है वो कौन सा बन रहा है. क्वेश्चन के अंदर जो हमें कंडीशन गिवन है दैट इज x ग्रेटर देन n. उसको अगर हम कंपेयर करें x ग्रेटर देन 4 के साथ, सो 4 इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3. The line y is equals to ax plus b is tangent to the curve y is equals to 2x cubed minus 5x squared minus 3x plus c at the point 2, 6. Find the values of the constants a, b and c. अब हमारे पास एक टेंजेंट की लाइन है और एक कर्व है, एक पॉइंट भी गिवन है, हमने वैल्यूज फाइंड करनी है अननोन की. ठीक है. सो सबसे पहले तो देखें जहाँ पे कर्व और टेंजेंट इन्वॉल्व है, दिस मीन्स के डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा. सो हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले dy by dx फॉर दिस कर्व. So y is equal to 2x cube minus 5x square minus 3x plus c, and dy by dx this is equal to 2. पावर को नीचे उतारें, पावर में से कम कर दें, और इसके बाद इनसाइड डिफरेंशिएशन होती है. सो दिस मीन्स पावर को हमने नीचे उतार दिया, इसकी पावर को हमने नीचे उतारा, पावर में से कम कर दिया, और इनसाइड डिफरेंशिएशन मतलब कि x की डिफरेंशिएशन फर्दर आगे 1 आएगी, सो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं. नेक्स्ट माइनस 5 एज इट इज. उसके बाद पावर को नीचे उतार दें, पावर में से कम कर दें, एंड देन इनसाइड डिफरेंशिएशन वो अगेन 1 आ जाएगी. देन -3, x की डिफरेंशिएशन 1 एंड कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होती है, 0 होती है. ठीक है. सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम. 2 3 6 x स्क्वायर माइनस 2 5 10 x माइनस 3. सो दिस इज dy by dx. नाउ हमें जो पॉइंट है वो भी गिवन है कि वो पॉइंट कौन सा है, 2, 6. सो नाउ वी विल पुट this point in this derivative. So put x is equal to 2. जब x is equal to 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा. ठीक है, ग्रेडियंट मिलेगा हमें, टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट मिलेगा. सो m of t is equal to 6 2 square minus 10 into 2 minus 3. So m of t is equal to 1. This means कि इस कर्व का इस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट है वो क्या है, 1 है. ओके. अब जो ये लाइन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लाइन भी इसी कर्व के ऊपर टेंजेंट है इस पॉइंट पे. सो अब हम इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एंड देन हम दोनों आंसर्स को इक्वेट करके वहां से अपना जो अननोन होगा वो फाइंड आउट करेंगे. सो वी विल फाइंड आउट dy by dx फ्रॉम हियर. dy by dx दिस इज इक्वल्स टू a, एंड x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो यहाँ से अगर इसमें हम ये पॉइंट भी पुट करें, मतलब x इज इक्वल टू 2 भी पुट करें, तो m ऑफ t जो है वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू a आ जाएगा. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट दीज ग्रेडियंट्स. ये दोनों हमारे पास एक ही पॉइंट पे ग्रेडियंट्स हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1. सो नाउ the equation of tangent becomes y is equals to ax plus b. So a को substitute कर दें 1, y is equals to x plus b. अब इसके अंदर जो पॉइंट है 2, 6, वो पॉइंट इस टेंजेंट से भी पास करता है. ठीक है, ये टेंजेंट जब उस पॉइंट से पास करता है, सो दिस मीन्स हम 2, 6 को इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो पुट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 6, वेयर 6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस b, सो b इज इक्वल्स टू 4. दो अननोन्स हमने फाइंड कर लिए. अब एक अननोन रहता है. ठीक है. अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यही जो सेम पॉइंट है 2, 6, इसी पॉइंट को हम कर्व में भी पुट करेंगे, बिकॉज कर्व भी उस पॉइंट से पास करती है. सो y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस c. इसके अंदर हम x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे, तो हमारे पास c इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा. ठीक है. सो 3 हमने बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर स्टेप किए हैं. फर्स्ट स्टेप हमने ये किया है कि हमने कर्व एंड टेंजेंट लाइन दोनों के ग्रेडियंट्स निकाले, उसमें पॉइंट पुट किया, दोनों को इक्वेट कर दिया. सो पहला हमारे पास कांस्टेंट वहां से आ गया. सेकंड हमने ये किया कि हमने गिवन पॉइंट को टेंजेंट लाइन के अंदर पुट किया, सेकंड हमारे पास अननोन वहां से आ गया. थर्ड हमने ये किया कि गिवन पॉइंट को हमने कर्व के अंदर पुट किया, और वहां से हमने थर्ड जो अननोन है वो निकाल लिया है. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4.
A runner who is training for a long distance race plans to run increasing distances each day for 21 days. She will run X kilometers on day 1, and on each subsequent day, she will increase the distance by 10% of the previous distance. On day 21, she will run 20 kilometers. Find the distance she must run on day 1 in order to achieve this. Give your answer in kilometers, correct to one decimal place. So सबसे पहले तो you need to understand कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से आया है. ये क्वेश्चन आपका आया है एपीजीपी के टॉपिक से. ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस फिर आपने ये डिसाइड करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है. एंड ये बात आपको यहाँ से पता चलेगी बाय 10% ऑफ द प्रीवियस डिस्टेंस. सो दिस मीन्स कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है. अगर सिंपली इंक्रीज होता, जैसे इंक्रीज ऑफ 10 किलोमीटर्स ऑन डेली बेसिस अगर होता, तो फिर इट्स मीन कि हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन होता. बट देयर इज एन इंक्रीज बाय 10% ऑफ द प्रीवियस डिस्टेंस. सो यानी कि प्रीवियस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी किसी परसेंटेज के हिसाब से जो डिस्टेंसेज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं. दिस मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, सो आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई करते साथ ही मेंशन कर लेना है कि ये एपी का क्वेश्चन है या जीपी का क्वेश्चन है. बिकॉज स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो एपी के क्वेश्चन में जीपी के फॉर्मूलाज लगा के आ जाते हैं और जीपी के क्वेश्चन में एपी के फॉर्मूलाज लगा के आ जाते हैं. सो जैसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो आपने उसको लिख लेना है. नेक्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट द डाटा. सो अब देखें कितने डेज है हमारे पास, 21 डेज हैं. दिस मीन्स n इज इक्वल्स टू 21. फर्स्ट डे पे उसका डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर्स. दिस मीन्स a इज इक्वल्स टू x. नेक्स्ट इज टू डिसाइड r. तो r हमारे पास देखें 10% ऑफ द प्रीवियस डिस्टेंस गिवन है. सो दिस मीन्स r इज इक्वल्स टू 1.1. नेक्स्ट अगर यहाँ पे 20% होता तो फिर आपने r लेना था 1.2. ठीक है, आप अगर 50% होता फिर आपने r लेना था 1.5. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन डे 21 शी विल रन 20 किलोमीटर. सो दिस मीन्स के लास्ट डे पे उसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 20 किलोमीटर्स. दिस मीन्स ए एन इज इक्वल्स टू 20. नाउ हमारे पास डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया है. हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे जीपी का, विच इज ए एन इज इक्वल्स टू ए एंड आर रेज टू द पावर n minus 1. अब इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें. ए एन इज 20, दिस इज इक्वल्स टू ए इज x and r is 1.1 raised to the power 21 minus 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, x is equals to 3. Okay, next part is find the total distance she runs over 21 days. So total distance मतलब कि हमें sn find करना है, sum find करना है. So sn is equals to e into 1 minus r raised to the power n over 1 minus r. So अब इसमें simply just value substitute करके तो इसका जो है वो आंसर निकाल लेंगे. So s21 आपके पास आ जाएगा 192. Question 5, part 1. Given that 4 tan x plus 3 cos x plus 1 over cos x is equals to 0, show without using a calculator that sin x is equals to minus 2 by 3. ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है. ठीक है, एंड कीप इन माइंड कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जब आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ करनी हो या इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपके पास जस्ट 2 आइडेंटिटीज हैं, वो आपने याद रखनी है, मेमोराइज करनी है और उन्हीं को यूज करना है. उनको यूज करके आपकी जो P1 की ट्रिग्नोमेट्री है वो सॉल्व हो जाएगी. और वो 2 आइडेंटिटीज कौन सी हैं, एक तो ये है कि tan x इज इक्वल्स टू sin x over cos x and second one is sin square x plus cos square x, this is equals to 1. इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज को हम अल्टरनेटिवली एज पर नीड यूज करते जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में. ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, so 4 tan x plus 3 cos x plus 1 over cos x is equals to 0. Here we can see that tan x is there, so this means we have to apply this identity. So tan x is equals to sin x over cos x plus 3 cos x plus 1 over cos x is equals to 0 as it is. Okay, next आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है. So इसका एलसीएम आ जाएगा cos x and in the numerator we have 4 sin x plus 3 cos square x plus 1.
नाउ ये जो cos x है दूसरी साइड पे जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके वैनिश हो जाएगा. सो 4 sin x + 3 cos2x + 1 इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो cos2x जो है वो अपीयर हो रहा है. ठीक है. जब भी आपके पास cos2x या sin2x अपीयर होगा, दिस मीन्स दैट कि हमें ये जो आइडेंटिटी है ये यूज करनी है. ठीक है. अब इस आइडेंटिटी से हम cos2x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. So from here we can get cos square x is equals to 1 minus sin square x. एंड हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स. सो दिस मीन्स कि हमें अपनी पूरी इक्वेशन को जो है वो साइन में ही कन्वर्ट करना होगा. दैट्स वाई हम cos स्क्वायर एक्स को जो है वो इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स लिख रहे हैं. सो दिस बिकम्स 4 sin x + 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट स्टेप में 3 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन सिंप्लीफिकेशन होगी. And here we get 4 sin x minus 3 sin square x plus 4 is equals to 0. नाउ इसको रीअरेंज कर लें, साइन स्क्वायर एक्स को पहले लिखते हैं, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को. सो दैट दिस बिकम्स 3 sin square x minus 4 sin x minus 4 is equals to 0. If we look at this equation and if I put sin x is equals to, let's suppose, a, then sin square x will be a square. So this equation becomes 3a square minus 4a minus 4 is equals to 0. And this is same as quadratic equation in x. So this means हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग के साथ सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. इसमें कि हमें टू फैक्टर्स जो है वो ढूंढने हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाए, -12 sin square x आ जाए एंड एड सब्ट्रैक्ट करने से -4 sin x बने. और वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? -6 sin x प्लस 2 sin x. सो नेक्स्ट स्टेप में 3 sin square x minus 6 sin x plus 2 sin x minus 4 is equals to 0. फर्स्ट टू टर्म्स में से आप देखिए 6 भी कॉमन आ रहा है, सॉरी 3 भी कॉमन आ रहा है और sin x भी कॉमन आ रहा है. सो 3 sin x कॉमन ले लें इंटू sin x minus 2 प्लस नेक्स्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाएगा. सो 2 इंटू sin x minus 2 दिस इज इक्वल्स टू 0. एंड नेक्स्ट इज sin x minus 2 into 3 sin x plus 2 is equals to 0. Finally, we get sin x minus 2 into 3 sin x plus 2. This is equals to 0. And from here, put sin x minus 2 is equals to 0 and 3 sin x plus 2 is equals to 0. So 3 sin x is equals to -2 and finally sin x is equals to -2 by 3. And from the other side, sin x is equals to 2, which is not possible because we know that the range of the sine function is from -1 to 1. So its answer cannot be equal to 2. And this is our required answer. Sin x is equals to -2 by 3. Next part. Hence, showing all necessary working, solve the equation 4 tan into 2x minus 20 degrees plus 3 cos into 2x minus 20 degrees plus 1 over cos into 2x minus 20 degrees. This is equals to 0 for x ranging from 0 degrees to 180 degrees. ओके अगर आप इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को कंपेयर करें फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, देन वी कैन सी दैट कि जो ओनली डिफरेंस है टर्म्स का वो जस्ट ये है कि x को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है किसके साथ? 2x minus 20 डिग्रीज के साथ. प्रीवियस क्वेश्चंस में देखें, प्रीवियस क्वेश्चन में 4 tan x plus 3 cos x plus 1 over cos x is equals to 0 गिवन था. एंड इसी के सेकंड पार्ट में x की जगह पे आपको अब गिवन है 2x minus 20 डिग्रीज. सो दिस मीन्स कि हम जो पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वी आर गोइंग टू यूज दैट सोल्यूशन बट विद द रिप्लेसमेंट ऑफ 2x minus 20 डिग्रीज. सो प्रीवियस क्वेश्चन का जो हमारे पास सोल्यूशन था वो हमारे पास आया था sin x इज इक्वल्स टू -2 by 3. और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम उसको मॉडिफाई करेंगे, सो दिस बिकम्स sin of 2x minus 20 degrees, this is equals to -2 by 3. All right. So put 2x minus 20 degrees is equals to some other variable. Let's suppose capital A. So sin of capital A is equals to -2 by 3. Now use the trigonometry.
साइन टेक साइन टू द अदर साइड, सो दिस बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ 2/3, एंड इसको आपने इक्वल टू थीटा लिखना है, एक इक्वल नहीं लिखना। ठीक है, वाई? बिकॉज हम इससे जो है वो अपना जो बेसिक एंगल है वो फाइंड आउट करते हैं, हम इससे सारे एंगल्स फाइंड आउट नहीं करते। जब हम साइन इनवर्स ऑफ 2/3 लेंगे, सो इससे हमारा बेसिक एंगल आएगा। एंड इग्नोर द नेगेटिव एज वेल। अगर आपके पास यहाँ पे प्रीवियस स्टेज में कोई नेगेटिव साइन यूज हो रहा है तो उसको इग्नोर करके आपने साइन इनवर्स लेना है। ठीक है, so theta is equal to sine inverse of 2/3, and this negative sign will help us in deciding the quadrant of the sine function. You know that 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, और साइन फंक्शन जो है वो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। ठीक है, यू कैन सी हियर। सो ये क्वाड्रेंट्स चारों बने हुए हैं। अब इसमें देखें, जब हमने एंगल जो मार्क करना है ना, वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में करना है, थीटा एंगल। ठीक है, बिकॉज जो साइन नेगेटिव है वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। एंड देन साइन इनवर्स ऑफ 2/3 इज 41.81 डिग्रीज। रिमेंबर टू कीप योर कैलकुलेटर इन डिग्रीज, डू नॉट गो फॉर रेडियन, बिकॉज आपकी जो रेंज है वो आपको डिग्रीज में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको डिग्रीज में गिवन है, तो डिग्रीज में ही आप इसको सॉल्व करेंगे, रेडियन में सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, सो 41.81 ये हमारे पास बेसिक एंगल आ गया। ठीक है, अब हमने जो ओरिजिनल एंगल है ना वो फाइंड आउट करना है, और वो कहाँ से मेजर करना स्टार्ट करते हैं? एक्स एक्सिस से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एंगल जब हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे, सो ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज द फर्स्ट एंगल। और ये कैसे मेजर हो रहा है आप देखिए, 180 डिग्रीज के अंदर जब हम थीटा को ऐड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एंगल आएगा। सो 180 प्लस 41.81, दिस इज आवर फर्स्ट एंगल। फॉर द सेकेंड वन, अब देखिए सेकंड वन जो है वो क्या होगा कि 270 डिग्रीज के अंदर या तो आप ये वाला एंगल ऐड कर दें, या फिर आप क्या करेंगे 360 डिग्रीज में से आप थीटा को माइनस कर दें, सो दैट यू कैन गेट द सेकेंड एंगल। सो व्हाट वी हैव डन, 360 डिग्रीज माइनस 41.81, और यहाँ पे हमारे पास ये दो एंगल्स आ गए हैं। ठीक है, अब ए को आप रिप्लेस कर दें 2x माइनस 20 अगेन, बिकॉज हमारा क्वेश्चन एक्स के अंदर है, तो हमें फाइनल आंसर जो है वो भी एक्स में लेना है, ए में नहीं लेना। So 2x minus 20, and these are the angles 221.81 and second one is 318.19. So अब ये जो -20 है ये दोनों के अंदर ऐड हो जाएगा, so इसको दोनों के अंदर ऐड कर दें and then divide both by 2. So this becomes final जो आपका आंसर है वो x में आ जाएगा। First angle is 120.905 and second is 169.095.